إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ برائی کے ساتھ کسی آواز کو بلند کیا جائے الا من ظلم، ہاں کسی کے اوپر ظلم کیا جائے تو یہ الگ بات ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب کوئی برائی دیکھو تو اس کی تشہیر نہ کیجیے، اس کے عیب پہ پردہ ڈالیے، کسی کی غیبت نہ کیجیے، کسی کی چغلی نہ کھائیے، اس لیے کہ غیبت کرنا حرام ہے۔ اور کسی کے اندر عیب کو دیکھیے تو اس کے اوپر پردہ ڈالیے، من ستر مسلمن ستر اللہ، جو کسی کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیوب پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کی وجہ سے اپنی آواز کو بلند کیا جائے گا، الا من ظلم، ہاں کوئی ظالم ہے تو ظالم کے ظلم کو واضح کیا جائے گا تاکہ اس کا مداوع ہو سکے اور اس کے ظلم کو روکا جا سکے، یہ جائز ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یفرقو بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے، گویا کہ یہ کفر کرتے ہیں، اور بعض رسولوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی کافر لوگ ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے، بعض رسولوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم درمیانہ راہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتے ہیں یہ پکے کافر ہیں۔ کافر اس طرح ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہاں حقیقت میں وہ لوگ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ڈالتے، فرق نہیں پیدا کرتے، اولئک یہی لوگ ہیں سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک عقیدہ اور اس یہود و نصارہ کے عقیدے کا رد کیا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا کفر اور ان کی یہ بات ہے مریم پر بہتان لگانا اور بہت بڑا بہتان لگانا کہ نعوذ باللہ وہ تو کو زانیہ عورت تھی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم رسول اللہ، اور ان کی یہ بات کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، حالانکہ قرآن کہتا ہے نہ انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام سولی دیے گئے ہیں، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے مشابہ کر دیا گیا۔ اور وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور ان کے درمیان بھی یہ اختلاف بھی ہے۔ وہ مشابہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور اس کو انہوں نے پھانسی پر چڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی پہ لٹکائے گئے ہیں۔ اور ان کے درمیان یہ بھی شک رہا اور وہ جانتے تھے پتہ نہیں ہم نے قتل کیا ہے بھی ہے یا نہیں کیا، بعض گروہ ہو گئے، بعض کہتے تھے قتل ہو گئے ہیں، بعض نے کہا نہیں وہ تو قتل نہیں ہوئے، یہ تو ان کے مشابہ کو بندہ تھا جس کو ہم نے قتل کیا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اس کو بلند کر لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا ہے، روح اور جسم کے ساتھ اٹھایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ اپنے امر اور اپنے حکم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کر لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔
खालिक़ कायनात रब्ब अर्ज़ व समा ने ईसा अलैहिस्सलाम को रूह और जिस्म के साथ बुलंद किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक कि जब क़यामत का कुर्ब होगा, करीब क़यामत, ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में एक मस्जिद के मीनार के करीब उतरेंगे और उस वक्त तकबीर पढ़ी जा चुकी होगी। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम की कैफियत को भी बयान कर दिया कि उनके बड़े लंबे बाल होंगे और बालों से पानी के कतरात गिर रहे होंगे। यूं तस्वर किया जाएगा कि अभी अभी गुस्ल करके आए हैं। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमा दी कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से ईसा अलैहिस्सलाम को बुलंद किया है और ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब वापस लौटेंगे और एक उम्मती यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फर्द होने की हैसियत से, नबी की हैसियत से नहीं बल्कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फर्द की हैसियत से तशरीफ लाएंगे। और आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि वो आकर खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिजिया खत्म कर दिया जाएगा और सारे के सारे लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। खालिक़ कायनात रब्ब अर्ज़ व समा फरमाते इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बादी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ वही की है जिस तरह हमने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और उसके बाद जो नबी आए हैं। वअौहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब व अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। इस तरह हमने वही की इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़, याकूब और उनकी औलाद की तरफ। ईसा अलैहिस्सलाम, अय्यूब, यूनुस, हारून, सुलैमान और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। खालिक़ कायनात रब्ब अर्ज़ व समा फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, ऐ ईमान वाला अहले किताब, ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, दीन में गुलूब ना करो। गुलूब क्या है? किसी की शान के अंदर बढ़ोतरी अपनी तरफ से कर देना, शान में इजाफा कर देना। वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, अल्लाह के बारे में वो बात करो जो हक है। अल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात न कहो कि जो अल्लाह के शान ही नहीं है। इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु, बेशक यकीनन मसीह ईसा बिन मरियम जो है वो अल्लाह के रसूल है और अल्लाह का कलमा है। अल्लाह के रसूल से मुराद तो वाज़ेह है, अल्लाह के नबी है, रसूल है। कलमे से मुराद क्या है? कलमे से मुराद ये है कि अल्लाह का कलमा, अल्लाह का हुक्म कि इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूलु लहू कुन फयकून। ये कलमा कुन है जिसके अल्लाह अमर देते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी अमल का इरादा करते हैं, किसी काम का इरादा फरमाते हैं तो कुन कहते हैं और वो हो जाता है। अलक़ा इला मरियम रूहुम मिन्हु फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वला तक़ूलू सलासा, और तुम सलासा ना कहो। सलासा से मुराद ईसाइयों का एक अकीदा है जो बयान किया गया है जिसको तस्लीस कहते हैं कि वो कहते हैं कि तीन मिलकर एक इलाह होता है, अल्लाह और रूहुल कुदस और ईसा बिन मरियम, ये तीनों मिलकर एक इलाह होते हैं। गोया कि शरीयत ने, कुरान ने यह कहा कि गुलूब न करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की रवायत, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के लोगों, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा बिन मरियम, मुझे उस तरह ना बढ़ा देना, मेरी शान में गुलूब उस तरह ना करना जिस तरह ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम के शान में गुलूब किया और उसको अल्लाह के साथ मिला दिया। बाज़ों ने अल्लाह का बेटा करार दे दिया, बाज़ों ने कहा कि ईसा ही अल्लाह है, नऊज़ बिल्लाह। गोया कि लोगों, मेरी शान में इस तरह गुलूब ना करना जिस तरह ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम की शान में गुलूब किया है। वक़ूलू अब्दुल्लाह व रसूली, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा ही कहो। मुझे अल्लाह ने अपना बंदा बनाया है और मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाह, लोगों मुझे अल्लाह का बंदा ही कहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। हमें भी ये नहीं चाहिए कि उस नबी की शान में इतना गुलूब करें कि हम अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा कर दे, अल्लाह की सिफात उस नबी के अंदर शामिल कर दे। बड़ी जहालत की इंतहा है। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। लोग तो नऊज़ बिल्लाह इस कदर गुलूब करते हैं औलिया की शान में, बल्कि बिलखुसूस पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान में इस कदर गुलूब कर देते हैं, नबियों से शान ज्यादा कर देते हैं, नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के बराबर उनकी शान को बयान कर देते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मेरी शान में गुलूब न करना जिस तरह ईसाइयों ने गुलूब किया है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ, यकीनन तुम मुझे अल्लाह का रसूल और अल्लाह का बंदा ही कहा करो।
खल्क़ कायनात और रब्बे अर्ज़ समा सूरत निसा की आखिरी आयत में फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास, ए लोगों, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील आ चुकी है। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ नूर वाज़े किया। नूर से मुराद कुरान है। और इसी बारे में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात को भी नूर कहा है। तौरात में अंदर भी हदायत भी है और नूर भी है। कुरान को भी कहा, कुरान के अंदर हदायत भी है और नूर भी है। गोया कि ये किताब को ही नूर कहा जा रहा है। आगे सूरतुल माइदा है। सूरतुल माइदा का नाम, इस माइदा का मतलब दस्तरखान होता है। ये वही दस्तरखान है जिसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह अपनी तरफ से दस्तरखान को नाज़िल फरमा। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली आयत में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। यहाँ उफुल उकूद से मैंने अहद की पासदारी करना है, वफा करना है। जब तुम वादा करो तो वादे की पासदारी करो। आगे हुर्मत और हिल्लत के मसाइल को बयान किया गया है। एक बड़ी जामे आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को पूरा कर दिया है। और रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे दीन इस्लाम पे मैं राजी हो चुका हूँ। अल्लाहु अकबर। ये आयत वो आयत है जिसके बारे में एक यहूदी आता है और वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहता है कि उमर, तुम्हारे कुरान में एक ऐसी आयत है, अगर वो हमारे अंदर नाज़िल हो जाती तो जिस दिन वो आयत नाज़िल होती हम उस दिन को ईद का दिन करार दे देते। इतनी अहम अजीम आयत है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला लगे वो कौन सी आयत है? तो वो कहने लगा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं हाँ, ये आयत है, हम इसको जानते हैं, इसके मुकाम को भी जानते हैं, इसके नज़ूल के दिन को भी जानते हैं। वो 9 ज़िलहज्जा का दिन था, यौम अरफा का दिन था, मैदान अरफात में नाज़िल हुई है, जुमे के दिन नाज़िल हुई है और जुमे के आखिरी पहर में ये कुरान की आयत नाज़िल हुई है। गोया कि दीन तकमील हो चुकी है और दीन कामिल है, अकमल दीन है, अकमल तरीन दीन है। और अब इस दीन के तकमील होने के बाद कोई नई बात अपनी तरफ से जो बात करेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। और दूसरी रिवायत के अल्फाज है मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। कोई भी नई बात लेके आएगा वो गोया के बिदात का इर्तिकाब करेगा, वो मरदूद अमल करेगा जो शरीयत में साबित नहीं है, जो अल्लाह ने उतारा नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं है, बताया नहीं है। वो बिदअत तो हो सकती है, अल्लाह के यहाँ अजर और सवाब नहीं हो सकता। गोया कि ये अजीम आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे अहले ईमान को हुक्म दिया है कि इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम। ये वुजू की तरतीब है और वुजू का जिक्र किया गया है। जहाँ वुजू का जिक्र किया गया है वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फलम तजिदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यिबा। जब अगर तुम्हें पानी न मिले तो फिर तयम्मम कर लो। और तयम्मम का तरीका भी कुरान ने बता दिया, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, अपने चेहरों का और अपने हाथों का मसा करो। ये दोनों रवायात मौजूद हैं सही बुखारी में। तरतीब के एतबार से भी 2 रवायात मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात भी साबित है। आका अलैहिस्सलाम के सामने जब जिक्र किया गया कि साहबी ने आया और बताया कि या रसूलल्लाह, मैं मुसाफिर था, रास्ते में मैं जुम्बी हो गया, मैं इस तरह लेटा जैसे जानवर लेटते हैं ना, इस तरह मैं अपने जिस्म को लुटाया और मैंने कहा कि इस तरह मैं पाक हो जाऊंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए ये जायज नहीं था, मुनासिब नहीं था, तुम सिर्फ इतना करते। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह जमीन पे मिट्टी पे हाथ मारा, आप अलैहिस्सलाम फरमाए इसमें इस तरह करते और फिर इसको फूंक लेते और फिर इसको चेहरे पे मल के इस तरह अपने वुजू कर लेते। ये तयम्मुम का तरीका है। और ये भी है इस तरह मारते फूंकते इस तरह, और ये भी हदीस से साबित है। ये तयम्मुम का तरीका है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बयान किया है, फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। यहाँ एक जिक्र करते हुए अल्लाहु अकबर, फग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरूसिकुम, अपने सरों का मसा करो। सरों के मसे के एतबार से बाज़ अहबाब कहते हैं कि ये फर्ज नहीं है, बाज़ कहते हैं चौथाई हिस्सा कर लीजिए, लेकिन कुरान ये कहता है
वमसहू बिरूसिकुम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई। आका अलैहिस्सलाम ने अपने ये सर की इब्तदा से, जहाँ से बालों की इब्तदा होती है, वहां से लेकर आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह अपनी गुद्दी तक ले गए और गुद्दी से वापस उसी जगह पे ले आए जहां से इब्तदा फरमाई थी। ये जो हम करते हैं गर्दन का मसा और उल्टे हाथों का मसा, ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है, और पूरे सर का मसा जो है वही करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ व समा फरमाते हैं, या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुन युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख़फ़ून मिनल किताबि व याफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर किताब आई है और वो अल्लाह की तरफ से नूर है और वाज़ेह किताब भी है। जैसे मैंने अर्ज़ की कि तौरात को भी हदायत का बाइस और नूर का बाइस करार दिया गया है। खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ व समा फरमाते हैं, वक़ालतिल यहूदु वन नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व हिब्बाहु। ये यहूदियों का दावा है और ईसाइयों का दावा है। वो कहते हैं कि हम तो नहनु अबनाउल्लाहि व हिब्बाहु, हम अल्लाह की औलाद हैं, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाते हैं, कुल फालिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अगर तुम अल्लाह की औलाद हो, अल्लाह के महबूब हो, तो फिर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पे तुम्हें अजाब क्यों देता है? तुम्हारे ऊपर इतनी आजमाइशें क्यों आती है? कितने अजाब से दो चार अल्लाह तुम्हें करता है? हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की औलाद नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ने इनकी तरदीद की है और कहा है कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। यहूदियों की भी तरदीद की है, ईसाइयों की भी तरदीद की है और मुशरिकीन अरब की भी तरदीद की है, जो कहते थे नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की बेटियां हैं और अल्लाह के जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह की नऊज़ बिल्लाह बेटियां करार देते थे। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका इनकार किया है और उनका रद्द किया है। खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ व समा फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ, वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वसीला क्या है? वसीले का मायने कुर्ब है। वसीले का जो मायने है वो कुर्ब है कि तुम उन अमाल को इख्तियार करो जो अल्लाह की मोहब्बत का जरिया और सबब बनते हैं, उन अमाल को इख्तियार करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा समीअतुमुल निदा फक़ूलू मिस्ल मा यक़ूलु सुम्मा सल्लु अलैहि, जब तुम अजान सुनो तो अजान में वही कहो जो मुअज्जिन कहता है और फिर मेरे ऊपर दुरूद पढ़ो और मेरे लिए वसीले के लिए दुआ करो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वसीला एक मुकाम है जन्नत में और वो सिर्फ एक ही आदमी को मिलेगा। और हमारा भी अकीदा यही है कि वो एक ही आदमी को मिलेगा और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नसीब होगा। वो एजाज आका अलैहिस्सलाम को ही मिलेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरे लिए वसीले की दुआ करता है उसके लिए मेरी शिफाअत जो है वो वाजिब और जरूरी हो जाती है। वसीले से मुराद कुर्ब हासिल करने का जरिया और सबब भी है। वसीला किसी से दुआ कराई जा सकती है और अपने नेक अमल का वसीला दिया जा सकता है। जैसे सही बुखारी में वो गार वाला वाकया बड़ा मशहूर वाकया है, उन्होंने अपने नेक अमल का वसीला दिया कि या अल्लाह ये हमारा अमल था, तू अगर इस पे राजी है, हमने तेरी रजा के लिए किया है, अल्लाह इस अमल की वजह से हमें नजात अता फरमा। खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ व समा फरमाते, वस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़। अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान किया है, चोर करने वाला मर्द हो, चोरी करने वाला मर्द या चोरी करने वाली औरत हो, उसकी जजा ये है फ़क़्तऊ अयदियहुमा, उनके हाथ काट दो। ये अल्लाह ने हद को नाफज किया है। नऊज़ बिल्लाह हमारे पार्लियामेंट में बाज़ दफा मजाक उड़ाया जाता है, क्या हम कुरान की इन हदों पे अमल करें? क्या हम अपने आदमियों को टुंडा कर लें? नऊज़ बिल्लाह ये मजाक बनाया जाता है। अल्लाह के कुरान ये कहता है कि अगर चोर है तो या चोरी करने वाली की औरत है तो उसका हाथ काट दिया जाए। अगर यही बात है कि आज भी कानून नाफिज कर दिया जाए तो हमारी बहुत सारी इन चोरियों पे जो डाके डाले जाते हैं, लोगों का माल चोरी किए जाते हैं, इन पे कंट्रोल हो सकता है। ये इसी वक्त हो सकता है कि जब अल्लाह की हुदूद को नाफिज किया जाए। अल्लाहु अकबर। खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ व समा इस बारे के में वही आयत जिसको हमने 2 बार जिक्र किया है, इन्ना अंज़लना तौरात, हमने तौरात को नाज़िल किया, फिया हुदन व नूर, इसमें हदायत भी है और नूर भी है। गोया कि कुरान को भी नूर कहा है और तौरात को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर कहा है। खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ व समा फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ऐ ईमान वालों यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ।
یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ اس لیے اللہ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگرچہ ان کے بہت سارے اختلاف ہیں، لیکن اہل ایمان کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں، ایمان والوں کے مقابلے میں یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مل کر۔ آج بھی معاشرہ اس بات کی دلیل ہے، آپ دیکھیے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف الکفر ملت واحدہ، ایک ہو کر یکجاں ہو کر مسلمانوں کو نعوذ باللہ مولی اور گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور مسلمان ہیں جن کو روکا گیا تھا کہ اے ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ہمارے حکمران وہ ہے، اسلام اپنے آپ کو کہلوانے والے۔ بدقسمتی یہ ہے ہم یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ محبت اور پیار کی پینے چڑھانے کے لیے، ان سے محبت اور ان سے بھیک مانگنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہم ان کا سہارا لیتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ یہودی اور عیسائی ان سے دوستی نہ کرو۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ یہودی اور عیسائی تم پر راضی ہو ہی نہیں سکتے، ہاں ایک طریقہ ہے کہ تم ان کے طریقے پہ چل پڑو، ان کے طریقے کو اختیار کر لو۔ رب کائنات نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ہاں اگر تم نے ان کا طریقہ اختیار کر لیا تو پھر تمہارا بھی شمار انہی کے ساتھ ہوگا۔ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے ان کا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر تم مرتد ہو جاؤ، مرتد کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا، اور مرتد کی سزا اللہ رب العزت نے جو جہنم رکھی ہے اور آقا علیہ السلام نے اس کی سزا قتل رکھی ہے، وہ ہے کہ جو دین کو چھوڑ دیتا ہے اور دین کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے، اور اس دور میں سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو بھی نازل ہے ہوا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اگر جو کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی ہے، گویا کہ اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نعوذ باللہ بعض لوگ کہتے ہیں بہت ساری باتیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنچائی نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان دے دیے تھے، ان کے پاس وہ محفوظ۔ حالانکہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس وہی کتاب ہے جو قرآن ہے، قرآن ہی ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اے نبی جو ہم نازل کرتے ہیں اس کو پہنچا دیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اصحاب رسول جمع ہے، جمع غفیر ہے، پوچھا تھا صحابہ سے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا ہے؟ جو اللہ نے میری ڈیوٹی ذمہ داری لگائی تھی کیا میں نے اس کو پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یقیناً تم نے وہ پہنچا دیا ہے، بلکہ پہنچانے کا تو حق ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی کھڑی کر کے آسمان کی طرف اشارہ کہا تھا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے وہ تیرا دین، وہ پیغام، وہ تو نے جو مجھے نازل کیا تھا میرے اوپر وہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو بندہ یہ کہے نعوذ باللہ کہ اللہ نے ایک دین تھا لیکن وہ بتایا نہیں ہے، سمجھایا نہیں ہے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان باندھ رہا ہے۔ کوئی خیر کی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا نہ دی ہو، اور کوئی شر ایسا باقی نہیں ہے جو آقا علیہ السلام نے جس کی رہنمائی نہ فرما دی ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک
ایک میری سنت ہے، اگر تم اس کو لازم پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگی، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو گمراہی تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔